Hello guys, welcome to Ashish Kumar Gupta channel in Knowledge Gyan. We will study about transport system in humans. Transport system in humans are two types: blood circulatory system and lymphatic system. This video we will study about blood circulatory system. Blood circulatory system consists of heart, blood and blood vessels. Heart is an organ which pumps blood and receives the blood. Blood is a liquid called plasma in which RBC, WBC and platelets are suspended. Blood vessels are the tube which carries blood. Blood vessels are three types: artery, vein and capillary. Artery carries oxygenated blood, that means oxygen. Vein carries deoxygenated blood, that means carbon dioxide. Capillary connect artery to vein. Main artery is called aorta, main vein is called vena cava. In this video, we will study about heart. This is a original diagram of heart. This is the original diagram of heart. Heart has four chambers, and this is a left part and this is a right part. Four chamber, left atrium or auricle, left ventricle, right atrium or auricle, right ventricle. In this way there are four chambers and dividing wall, that is called septum. This is a simple diagram of human circulatory system. This is a heart and this is a lungs, heart and kidney. Oxygen containing blood, oxygenated blood comes into the heart, and heart pumps the blood to whole the body, and whole body to comes again to the heart, and heart pumps the blood, goes to the lungs for oxygenation. This is a simple diagram. This is a more simplest diagram of human circulatory system: lungs, heart and kidney. And lungs carry these blood vessels. Pulmonary vein carry oxygenated blood into the heart, and in heart that blood comes into the next chamber, that is called ventricle. Left ventricle and left ventricle pumps blood to all the body, and all the body to comes into the heart, and again heart pumps the blood to goes to the lungs for oxygenation. This process occurs again and again. Heart is an organ which pumps and receives the blood. It is triangular in shape. It is made up of cardiac muscles which never tired and works without rest whole life. The size of our heart is about the clenched fist, बंद मुट्ठी. साइज जो हार्ट की बंद मुट्ठी की तरह है. Our heart is covered by a sheath of tissue called pericardium, protect the muscular heart. यानी हार्ट जो है, हृदय जिसको हिंदी में कहते हैं, हार्ट इज ऑर्गन, ऐसे अंग है विच पंप्स एंड रिसीव द ब्लड. ये पंप करती है और ब्लड को प्राप्त भी करती है, लेती है. इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, यह जो है त्रिभुजाकार आकार है. इट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल से बनी है, विच नेवर टायर. ना तो यह थकती है, न तो बिना आराम किए ये पूरे जीवन काल तक चलती रहती है. जिस दिन ये रुक जाएगी आदमी भी डेथ कर जाएगा. द साइज ऑफ आवर हार्ट इज अबाउट क्लीन फिट, एक बंद मुट्ठी की तरह है. जैसे एक बंद मुट्ठी जिस तरह से है उस तरह से है. आवर हार्ट इज कवर्ड बाय ए शीथ ऑफ टिश्यू, एक टिश्यू जो है कवर्ड है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती है मस्कुलर हार्ट को. ठीक है. द हार्ट हैज फोर चैम्बर. द अपर टू चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एट्रिया और एट्रियम, या ऑरिकल नाम है. एट्रिया जो है प्लूरल है, सिंगुलर एट्रियम, या दूसरा नाम जो है ऑरिकल है, या तो एट्रियम बोले या ऑरिकल बोले. एंड द लोअर टू चैम्बर ऑफ हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स है. द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स है. तो जैसे हार्ट में जो है चार चैम्बर होते हैं, और अपर दोनों चैम्बर को जो हार्ट का जो है एट्रियम कहते हैं या ऑरिकल बोले. तो लेफ्ट पार्ट है तो लेफ्ट ऑरिकल बोलेंगे, राइट पार्ट में है तो राइट ऑरिकल बोलेंगे, या एट्रियम किसी किसी बुक में है तो एट्रियम बोलेंगे. लेकिन जो भी है एट्रियम बोले या ऑरिकल बोले, अपने ऊपर निर्भर. एंड द लोअर टू चैम्बर ऑफ हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स कहते हैं. निचले हिस्से को जो है वेंट्रिकल कहते हैं. लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, या लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम.
थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 3 प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स जो है, आर्टरी है, वैन है, कैपिलरी। आर्टरी है, थिक वॉल है, मोटी दीवारें होती है, क्या कि काफी तेजी से पंप की जाती है, इसलिए आर्टरी की मोटी दीवारें होती है। वैन की जो है थिन, उतनी मोटी नहीं होती है, क्योंकि अब पूरे बॉडी से जब ब्लड को रिसीव करके हार्ट तक लाती है, हार्ट पंप करती है, तो लंग्स में जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि हर एक सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, उस ब्लड को जो है हार्ट तक लाती है, हार्ट फिर पंप करके लंग्स में ले जाती है। कैपिलरी जो है ये टाइनी ब्लड वेसल, छोटी ब्लड, बहुत पतली है, बाल के तरह पतली ब्लड वेसल से, जो कि कनेक्ट करती है आर्टरी टू वेन को कनेक्ट करती है। तो कैपिलरी जो होती है ये हर एक सेल्स तक पहुंचती है, यानी कि सेल्स के पास तक पहुंच जाती है, और वो जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स है ये सेल्स को देती है, और सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है वो जो है कैपिलरी लेकर जो है वैन में जाती है, वैन जो हार्ट में, हार्ट से लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए चली जाती है। प्रक्रिया चलती रहता है। आर्टरी, आर्टरी क्या है? दैट ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड आर्टरी, यानी कि ऐसे ब्लड वेसल्स जो कि कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ब्लड को हार्ट से जो है बॉडी के हर भाग में ले जाती है, उसको आर्टरी कहते हैं। वैन जो है, दैट ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड वैन, यानी ऐसे ब्लड वेसल्स जो कि कैरी करते हैं ब्लड को ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर भाग से जो है हार्ट तक ले जाती है, उसको वैन कहते हैं। वैन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टेनिंग ब्लड है। आर्टरी जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, हमें याद रखना है। वैन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टेनिंग ब्लड। वैन जो हम लोग जो देखते हैं हाथों में जो वैन है ये दिखाई देती है, ये जो है वैन है, क्योंकि ये ब्लू कलर की दिखाई देती है, ब्लू या ग्रीनिश जो है दिखाई देती है, लेकिन आर्टरी जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि आर्टरी बहुत अंदर होती है। ठीक है, तो कैपिलरी जो है, कैपिलरी जो है मेन आर्टरी व्हिच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द टिश्यू विथ हाई प्रेशर इज कॉल्ड एओर्टा। ठीक है, तो कैपिलरी हम लोग दैट ब्लड वेसल्स व्हिच कनेक्ट आर्टरी टू वैन इज कॉल्ड कैपिलरी हो गया, और एओर्टा जो है मेन आर्टरी को ही एओर्टा कहते हैं। मेन आर्टरी व्हिच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी टिश्यू विद हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ जो है ये पंप करती है, जिसको एओर्टा कहते हैं, जो हार्ट से निकलती है ब्लड और पूरे बॉडी में जो जाती है, तो जो एओर्टा के माध्यम से जो है जाती है। उसके बाद जो है एओर्टा जो है डिवाइड इनटू मैनी पार्ट्स, तो आर्टरी उसको कहते हैं आगे चल के। उसके बाद वेना कावा, मेन वैन व्हिच कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन इज कॉल्ड वेना कावा। मेन वैन व्हिच कैरी, जो कि कैरी करती है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से जो है लंग्स में ले जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए, इसको जो है वेना कावा कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी, दैट ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। हमेशा याद रखना स्टूडेंट की आर्टरी जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन जैसे पल्मोनरी लग जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टेनिंग ब्लड कैरी करेगी। ठीक है, ये स्टूडेंट हमेशा याद रखना है कि पल्मोनरी जहां लगा, पल्मोनरी आर्टरी दैट मीन्स यह जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टेनिंग ब्लड कैरी करती है, यानी अशुद्ध रक्त जिसको कहते हैं हिंदी में, ये कैरी करती है। पल्मोनरी वैन, दैट ब्लड वेसल्स व्हिच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, लंग्स से जो हार्ट में ले जाती है, जिसको पल्मोनरी वैन कहते हैं। तो पल्मोनरी लगा, वैन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी लगा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी कि दैट ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी वैन। तो हमेशा इसमें दोनों में याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वैन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये आर्टरी जो है शुद्ध रक्त जिसको कहते हैं, और वैन जो है अशुद्ध रक्त कैरी करती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जब पल्मोनरी लग गया यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जब पल्मोनरी वैन के आगे लग गया यानी कि शुद्ध रक्त कैरी करती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये हमेशा जो है ध्यान देना है। हार्ट एक्ट लाइक ए डबल पंप की तरह काम करती है, और ये जो है डबल सर्कुलेशन के रूप में भी काम करती है। डबल सर्कुलेशन के रूप में कैसे काम करती है? डबल सर्कुलेशन जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये क्या है, कैसे है काम करती है, इसको देखने से पहले, डबल सर्कुलेशन देखने से पहले हम लोग हार्ट का डायग्राम को देखते हैं। दिस इज ओरिजिनल एंड कॉम्प्लेक्स डायग्राम ऑफ हार्ट। हार्ट का जो है ओरिजिनल है और कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, इसको जो है अभी समझ में नहीं आएगा, ये पहले सिंपल डायग्राम को समझाएंगे, उसके बाद जो है ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम को जो है बताएंगे। सिंपलेस्ट डायग्राम ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंपल डायग्राम को हम लोग पहले देखेंगे। सिंपल डायग्राम में पहले देखते हैं कि ये लंग्स है, दिस इज ए लंग्स, दिस इज ए हार्ट एंड दिस इज ए किडनी। यानी कि लंग्स में जो ऑक्सीजनेशन होती है और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, तो ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज हुई और कार्बन डाइऑक्साइड जो है
रिमूव हुई। तो ऑक्सीजन जो है लंग से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कम्स इनटू द हार्ट विद ए ट्यूब दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वैन। हमें याद रखना है कि लंग से जो है हार्ट में जो आती है उसको जो है पल्मोनरी वैन कहते हैं, वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो हार्ट के जो लेफ्ट पार्ट में, ये लेफ्ट पार्ट है, ये जो है कौन सा भाग है, ये जो है लेफ्ट पार्ट है, इसको जो है लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट में देख रहे हैं क्या कि हार्ट के जो है 4 चेंबर, 1 2 3 4 4 चेंबर है। तो ये जो है फर्स्ट चैम्बर में जो है ये लंग से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वैन के द्वारा, इसको याद रखना है कि दैट ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वैन। याद रखना है, ये पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से जो है, यानी कि उस ब्लड वेसल्स का नाम बताना है जो कि लंग से जो है हार्ट में जो लाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसको पल्मोनरी वैन कहते हैं। बताए थे कि पल्मोनरी वैन यानी कि वैन जो है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी लगा है यानी उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब जो है इस चैम्बर में आई, इस चैम्बर में आने के बाद जो है फिर जो है नेक्स्ट चैम्बर में गई, इसको जो है कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल कहते हैं इसको। फर्स्ट चैम्बर जो है इसको जो है लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल, किसी बुक में एट्रियम भी लिखा रहता है, किसी बुक में ऑरिकल लिखा रहता है, और किसी बुक में तो, और दूसरे में जो है वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आई, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है फिर जो है ये पूरे बॉडी में गई, पूरे बॉडी में गई, उसको मेन आर्टरी कहते हैं, एओर्टा, मेन आर्टरी दैट इज कॉल्ड एओर्टा, मेन आर्टरी है। मेन आर्टरी के द्वारा जो है काफी प्रेशर से जो है पूरे बॉडी में जाती है, जिसको जो है एओर्टा कहते हैं। इसके बाद पूरे बॉडी में जो है ये जो है आर्टरी हो गया। अब जो है ये वैन जो है पूरे बॉडी से जो है फिर जो वापस जो है हार्ट में आती है, क्योंकि पूरे बॉडी सेल्स में जो है ऑक्सीजन जो है, हर एक सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन जो है कंज्यूम की, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो पूरे बॉडी से जो है वो ब्लड कैपिलरी से होते हुए वैन में गई, और वैन से जो है मेन वैन जिसको कहते हैं वेना कावा, वो जो है पूरे हार्ट में लाई। हार्ट में जो है हार्ट के जो है अपर चैम्बर जो है राइट पार्ट के अपर चैम्बर में लाई, और अपर चैम्बर में जो है इसको राइट एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं। ये राइट पार्ट है ये, और ये लेफ्ट पार्ट है। बीच में जो सेप्टम है जिसको डिवाइडिंग वाल कहते हैं, इसमें जो है ये क्या है, सेप्टम है जिसको डिवाइडिंग वाल, DIVIDING, डिवाइडिंग वाल, ये डिवाइडिंग वाल इसको कहते हैं। और इस तरह से जो है क्या होता है, इधर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया इस पार्ट में। अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में आई, इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड जो है इस चैम्बर में आई, जिसको राइट एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं। उसके बाद जो है राइट एट्रियम या ऑरिकल से जो है राइट वेंट्रिकल में आई, फिर राइट वेंट्रिकल में आई तो फिर हार्ट जो है इसको पंप करके जो है कहाँ भेज देती है, लंग्स में, फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। क्योंकि तो हम देख रहे हैं कि हार्ट के जो ये पार्ट जो है राइट पार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लेफ्ट पार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। इस तरह से यहाँ जो है सेपरेट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वार्म ब्लडेड एनिमल से मोर एनर्जी चाहिए, यानी मोर ऑक्सीजन और चाहिए, इसके लिए जो है इस तरह का जो है ये 4 चैम्बर हार्ट जो है। बहुत सारे जीव है जिसको 2 चैम्बर है, जैसे फिश है 2 चैम्बर है, बहुत सारे जो है बर्ड्स हैं उसके जो 4 चैम्बर है, क्योंकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स है तो उनको ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, इसलिए जो है उनके हार्ट जो है 4 चैम्बर है। तो इस तरह से जो है देख रहे हैं क्या कि पल्मोनरी वैन के द्वारा लंग से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फर्स्ट चैम्बर में आई, लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल में, फिर लेफ्ट एट्रियम ऑरिकल से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आई, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में आई, और आर्टरी को जो है वैन से जो है कनेक्टेड की, कैपिलरी ब्लड कैपिलरी जो है कनेक्ट की, ब्लड कैपिलरी जो है कनेक्ट करके वैन में दी, जिसको मेन वैन कहते हैं, वेना कावा जो है कहाँ, हार्ट में लाई, और हार्ट से जो है अपर चैम्बर जो है राइट एट्रियम राइट ऑरिकल के बाद जो है नीचे आई, जिसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं। राइट वेंट्रिकल से जो है लंग्स में गई फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए। इस जो है ब्लड वेसल का पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन जब पल्मोनरी लग गया तो उल्टा हो जाता है, यानी कि ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी की, यानी कि हमेशा याद रखना है पल्मोनरी वैन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वैन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसी में जो स्टूडेंट जो है
धोखा खा लेते हैं कि ये पल्मोनरी वैन है, पल्मोनरी आर्टरी, तो ये क्या हो सकता है, तो ये उल्टा हो जाएगा। पल्मोनरी जहां रहेगा जिसके आगे, यानी उल्टा हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी है दैट मीन डीऑक्सीजन ब्लड कैरी करते हैं, पल्मोनरी वैन दैट मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। यही दोनों को याद रखना, इसी दोनों में जो है दिक्कत होती है। लेकिन इसको भी समझ में आ गया कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, क्यों? क्योंकि वैन के आगे जो पल्मोनरी लगा है यानी कि ऑक्सीजन ब्लड, आर्टरी के आगे पल्मोनरी लगा है दैट मीन ये डीऑक्सीजन ब्लड कैरी कर रही है। यही अंतर है इसमें। इस तरह से ये हो गया। इसमें जो है अब देखेंगे क्या कि इसमें जो वल्व भी लगे होते हैं, वल्व भी होते हैं। तो वल्व का काम क्या है कि इंश्योर करना कि ओनली वन डायरेक्शन में जो है ये जाए। तो इसमें जो वल्व का फंक्शन ये है, जैसे साइकिल में वल्व होते हैं ओनली वन डायरेक्शन, यानी कि हवा जो ट्यूब में देते हैं तो ट्यूब में ही जाए, बाहर नहीं निकले, नहीं तो बाहर निकलने लगे तो फिर जो साइकिल चलेगी नहीं। इसी तरह से सेम फंक्शन है कि ये पल्मोनरी वैन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, तो फिर वापस जो पल्मोनरी वैन वापस नहीं चला जाए, वो यहाँ आकर जो है आगे ही बढ़े, पीछे नहीं जाए। तो यहाँ जो एक वल्व है, इस वल्व का जो है नाम है लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में जो एक वल्व है, इसका नाम है बाइकुस्पिड वल्व या मिट्रल वल्व। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम देते हैं, बाइकुस्पिड वल्व भी देते हैं, किसी बुक में मिट्रल वल्व। तो बाइकुस्पिड वल्व या मिट्रल वल्व भी इसका नाम है। ये जो है इंश्योर करती है कि ब्लड जो है इससे वापस नहीं जाए, यही रहे इसमें, इस चैम्बर में, ठीक है। उसके बाद जो है फिर निचले जो है, नीचे में जो एक वल्व है जिसको एओर्टिक वल्व कहते हैं। ये एओर्टिक वल्व इंश्योर करते हैं कि आगे ब्लड बढ़े, पूरे बॉडी में जाए, पीछे नहीं जाए ब्लड। तो एओर्टिक वल्व का ये फंक्शन है। फिर जो है पूरे बॉडी से जो है हार्ट में आती है, तो हार्ट में जब आती है इसको ट्राइकुस्पिड वल्व कहते हैं। ये वल्व का इंश्योर सुनिश्चित करती है ताकि ब्लड जो है बैक नहीं जाए, ये यहाँ रहे। और उसके बाद जो है पल्मोनरी वैन, उसके बाद निचला वल्व है, 4 वल्व होते हैं। चौथा वल्व है, फोर्थ वल्व जो है पल्मोनरी वल्व, ये सुनिश्चित करती है कि ब्लड जो है लंग्स में जाए, पीछे नहीं, बैक नहीं आए। तो ये वल्व जो है ये सुनिश्चित करती है कि यानी कि ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आए, एक वल्व का। तो हम लोग बताए 4 वल्व है, बाइकुस्पिड वल्व और मिट्रल वल्व, एओर्टिक वल्व, ट्राइकुस्पिड वल्व एंड पल्मोनरी वल्व। 4 वल्व है। चारों वल्व जो है अपना काम जो है करते हैं सुनिश्चित रूप से, ताकि जो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा जो है ब्लड ट्रैवल करे, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम लोग देखें क्या कि लंग से जो है पल्मोनरी वैन के द्वारा फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट में आती है। हार्ट में जो बाइकुस्पिड वल्व या मिट्रल वल्व है, उसके बाद जो है ये वल्व से होते हुए जो है फिर नीचे आई एओर्टिक वल्व में। एओर्टिक वल्व सुनिश्चित करती है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, पूरे बॉडी में गई, जैसे किडनी में ब्लड गई, किडनी में प्यूरिफाई हुई, जो भी उसमें जो फिल्टर करके जो है यूरिन जो है, ये यूरिनरी डक्ट है, ठीक है, ये पेयर ऑफ किडनी है, यूरिनरी डक्ट में आई, यूरिनरी ब्लैडर में आई और यूरिन जो है यहाँ कलेक्ट हो गई। तो ये ब्लड से ही जो है सेपरेट करके फिल्टर करके जो है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया है, ये सब जो है फिल्टर करने के बाद जो है वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ फिर जो है फाइन कैपिलरी जो है कनेक्ट करती है वैन से। तो जो मेन वैन है जिसको वैना कावा कहते हैं, पूरे बॉडी टू द हार्ट तक जाएगी, जिसको मेन वैन के द्वारा, वैना कावा के द्वारा। और इस तरह से जो है यहाँ जो है एक वल्व है जिसको जो है ट्राइकुस्पिड वल्व कहते हैं। और ट्राइकुस्पिड वल्व से जो है फिर नीचे जो आती है इसको जो है कहते हैं पल्मोनरी वल्व। पल्मोनरी वल्व जो इंश्योर करती है ताकि जो ब्लड जो है ओनली वन डायरेक्शन में लंग्स तक पहुंचे और बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आए। ये वल्व का काम है कि आगे की ओर बढ़ते रहे लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए। ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। और वल्व जो है चारों वल्व हम लोग देख लिए, बाइकुस्पिड वल्व और मिट्रल वल्व, एओर्टिक वल्व, ट्राइकुस्पिड वल्व एंड पल्मोनरी वल्व। This is the original diagram of human heart. This is a septum dividing valve. This is a right part of the heart. This is a left part of the heart. Left part of the heart. This side is oxygenated blood and this side is a deoxygenated blood. Oxygenated blood. Pulmonary vein. Pulmonary vein carry oxygenated blood from lungs and comes into this chamber. दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल। लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल, देयर इज ए वल्व दैट इज कॉल्ड बाइकुस्पिड वल्व और मिट्रल वल्व। देयर इज ए वल्व दैट इज कॉल्ड बाइकुस्पिड वल्व और मिट्रल वल्व। यानी कि दिस वल्व इंश्योर दैट ब्लड गोज ओनली वन डायरेक्शन, दिस चैम्बर में आ जाए, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए, लेफ्ट ऑरिकल में नहीं जाए, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम में जो है नहीं रहे,
यहाँ आ जाए सुनिश्चित कर दिया वाल्व जो है ओनली वन डायरेक्शन में। इसके बाद जो है ये ब्लड जो है ट्रैवल करेगी, ये जो है एवर्टिक वाल्व, इसको क्या कहते हैं एवर्टिक वाल्व, यानी कि एवर्टिक वाल्व जो है यानी कि एवर्टा जो है यानी कि जो है मेन आर्टरी जिसको कहते हैं, ये पूरे बॉडी में जाएगी, फोर्स के साथ जो है पूरे बॉडी में जाएगी। इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम, सिंपल डायग्राम हम लोग दिखाए थे कि नीचे से चले जाए, ये ऐसे नहीं है। ओरिजिनली में क्या है, ऐसे आकर जो है ऐसे चली जाती है, पूरे बॉडी में जाती है, ठीक है। तो यानी कि पल्मोनरी वैन कैरी ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड दिस इज ए लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल एंड this is a valve that is called bicuspid valve or mitral valve and comes into this chamber that is called left ventricle. Left ventricle's blood goes into the aorta and here is a valve that is called aortic valve. Aortic valve जो है aorta से जो है प्रेशर से जो है पूरे बॉडी में जाती है। अब उसके बाद जो है पूरे बॉडी से जो है लोअर बॉडी से जो है यहाँ से जो है प्रवेश करती है, पूरे लोअर बॉडी से जो है यहाँ जिसको मैन वैन दैट इज कॉल्ड वैना कावा जो है ये इस चैम्बर में है, जिसको राइट एट्रियम और ऑरिकल, राइट एट्रियम और ऑरिकल, इसका जो है नाम एट्रियम बोलिए ऑरिकल बोलिए अपने ऊपर निर्भर है। उसके बाद जो है अपर बॉडी जो है वैना कावा फ्रॉम अपर बॉडी से ऊपर से जो यानी कि वैना कावा, यानी कि वैना कावा जो है अपर बॉडी से, वैना कावा लोअर बॉडी से यहाँ आई इस चैम्बर में, इसको कहते हैं राइट एट्रियम और ऑरिकल। राइट एट्रियम ऑरिकल से जो है राइट वेंट्रिकल में आई। तो यहाँ एक वाल्व है, इस वाल्व का जो है नाम दिया गया है ट्राइकोस्पिड वाल्व, इसका नाम है ट्राइकोस्पिड वाल्व। और इस वाल्व से होते हुए फिर ब्लड जो है यहाँ आई, इस तरह से आई, थोड़ा उल्टा हो जाता है ओरिजिनल डायग्राम में जो है, सिंपल डायग्राम में जो है सिंपलेस्ट वे से दिखाए थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इस तरह से आके ऐसे चली जाती है। तो यहाँ जो एक वाल्व है पल्मोनरी वाल्व है, ये पल्मोनरी वाल्व जो है पल्मोनरी आर्टरी जो है, तो पल्मोनरी आर्टरी यानी आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी लगाओ यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स में चली जाती है फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए चली जाती है। इस तरह से जो है ये हार्ट जो है फंक्शन करती है, ठीक है। तो ये जो है राइट यानी कि लेफ्ट पार्ट जो है हार्ट का जो है ठीक है, इसका कारण क्या है, यहाँ जो हाई प्रेशर से जो है पूरे बॉडी में पंप करती है, जिसके कारण जो है ये जो है काफी ठीक वाला है। ट्रायंगुलर शेप है, हल्का टिल्टेड है, टिल्टेड पोजीशन में, लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, ठीक है। और ये जो है थोड़ा सा जो है झुकी हुई है किधर, राइट साइड में, राइट पार्ट में, और थोड़ा टिल्टेड है। और ये जो है लेफ्ट पार्ट जो है ये जो है थोड़ी सी जो है थिकनेस है, इसकी मोटी है, इसकी तुलना में जो है ये लेफ्ट साइड में थोड़ी मोटी है राइट साइड की तुलना में, क्योंकि यह ज्यादा प्रेशर से जो है पूरे बॉडी में जो है ब्लड को पंप करती है, जिसके कारण जो है। तो ये ओरिजिनल डायग्राम है, फिर से एक बार देख लेते हैं। पल्मोनरी वैन जो कि फ्रॉम लंग से जो है इस चैम्बर में आई, जिसको लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम जो है लेफ्ट एट्रियम में आई, या ऑरिकल जिसको कहते हैं, एट्रियम बोले ऑरिकल बोले। फिर यहाँ जो है वल्व है, जिसको जो है बाइकुस्पिड वल्व और मिट्रल वल्व कहते हैं। दोनों में से कोई एक नाम याद रखना है, बाइकुस्पिड वल्व या मिट्रल वल्व। इसके बाद जो है ये ब्लड जो है यहाँ आई इस चैम्बर में, जिसको जो है लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है या ऑरिकल है। तो इसमें आई, यहाँ से जो है ये जो वल्व है यहाँ, इसको एवर्टिक वल्व कहते हैं। तो ये ऐसे सीधे एवर्टा से होते हुए पूरे बॉडी में गई, ठीक है। अब जब पूरे बॉडी में जाने के बाद पूरे बॉडी सेल्स में जो है यूटिलाइज हुई ऑक्सीजन, उसके बाद कांडा से जो प्रोड्यूस हुई वो कैपिलरी के माध्यम से जो है ये मेन वेन, जिसको वेना कावा से होते हुए जो है लोअर पार्ट बॉडी से जो है इस चैम्बर में आई, जिसको राइट एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं। ये अपर पार्ट जो है ब्रेन, ये सब से जो है होते हुए जो है पूरे ये हार्ट में आई, तो इसको जो है अपर पार्ट कहते हैं वेना कावा। तो यहाँ से जो ये चैम्बर में आई, राइट एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं। राइट एट्रियम ऑरिकल से जो है राइट वेंट्रिकल में आई, ठीक है। तो राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में आई, तो फिर वापस जो है राइट एट्रियम या ऑरिकल में नहीं चले जाए, इसलिए जो है यहाँ वल्व है, जिसको जो है वल्व का नाम है ट्राइकोस्पिड वल्व। ये वल्व जो इंश्योर करती है कि ओनली वन डायरेक्शन में ब्लड जाए, पीछे नहीं चली जाए, ठीक है। उसके बाद जो है ये आगे बढ़ती है, ब्लड जब फोर्स करती है तो ऊपर जाती है। तो ऊपर जो एक वल्व देख रहे हैं पल्मोनरी वल्व, ये पल्मोनरी वल्व जो है ये क्या करती है, ये लंग्स में चली जाती है फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो डीऑक्सीजन ब्लड जो है ऑक्सीजनेशन होने के लिए जो है, यानी कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है लंग्स में होगा, तो वहां जो इस तरह से जो है हार्ट जो है ये फंक्शन करती है। तो इससे जो है समझ में आ गया होगा कि हार्ट कैसे फंक्शन करती है, ठीक है। तो आर्टरी इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड O2, वैन इट कैरी डीऑक्सीजन ब्लड CO2। स्टूडेंट्स, डबल सर्कुलेशन
हार्ट एक्ट लाइक डबल पंप। तो डबल सर्कुलेशन क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, ये सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। यानी कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें जो ब्लड जो है ट्रेवल करते हैं 2 बार हार्ट इन कंप्लीट साइकिल, पूरे साइकिल में जो है, जिसको डबल साइकिल यानी डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो डबल सर्कुलेशन में जो है इसमें जो है टर्म्स आते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। The pulmonary circulation, the circulatory system of blood from heart to the lungs and back to the heart is called pulmonary circulation। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड का जो है जिसमें हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से लंग्स में गए और फिर हार्ट में आई, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन का है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन का है। और दिस 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इस दोनों प्रकार के सर्कुलेशन को जो है ये जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। इसको हार्ट में देखेंगे हम लोग। डबल सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन कैसे होता है? तो डबल सर्कुलेशन में जो है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन एक है और उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हुआ? ये सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से जो है लंग्स में गई और फिर जो है बैक टू द हार्ट, यानी लंग्स से जो है हार्ट से जो लंग्स में गई, लंग्स से जो हार्ट में गई, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन का है। ठीक। और जो है फिर जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बॉडी एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी कि जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, हार्ट से जो है लंग्स में गई, लंग्स से जो है फिर हार्ट में आई, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। और हार्ट से जो है पूरे बॉडी में गई, पूरे बॉडी से जो है हार्ट में आई, इसको जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये दोनों ही सर्कुलेशन को जो है डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो हमारा हार्ट जो है डबल सर्कुलेशन ही करती है। तो कैसे करती है डबल सर्कुलेशन, ये भी देखेंगे। तो जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो है हार्ट जो है पंप की ब्लड को, तो ये जो है ऑक्सीजनेशन के लिए जो है लंग्स में गई, किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। और पल्मोनरी ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर हार्ट में आई। तो यानी कि एक गई और फिर वापस आई, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। और फिर जो है हार्ट से जब पूरे बॉडी में गई या पूरे बॉडी से जो हार्ट में आई, इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन का है। तो ये जो है दोनों सर्कुलेशन जो है एक साथ होता है, इसलिए डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक समय में जो है ब्लड जो है लंग से जो है फिर हार्ट में आई और उसी समय जो है पूरे जो है हार्ट से जो है बॉडी में गई, बॉडी से फिर हार्ट में आई। तो यानी कि ये डबल सर्कुलेशन करती है, हमारा हार्ट जो है डबल सर्कुलेशन करती है। तो डबल सर्कुलेशन कैसे करती है ये भी हम लोग देखेंगे कि ये हार्ट जो है, ठीक है, तो हार्ट का जो है दोनों जो है, ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है। राइट और लेफ्ट पार्ट जो है दोनों एक साथ जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, दोनों जो है एक साथ सिकुड़ेगी। तो एक साथ जब दोनों सिकुड़ेगी तो इसमें क्या होगा? दोनों एक साथ होगा, सिकुड़ेगी। फिर जो है क्या होगा कि इसमें जो है इस चैम्बर में जो है लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल में जो है ब्लड है वो आएगी कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और इसमें जो है राइट पार्ट हार्ट में जो है लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल में जो है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और ये ऑरिकल में जो है तो राइट वेंट्रिकल में आएगी। ठीक। अब फिर ये दोनों सिकुड़ेगी तो हार्ट जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, तो क्या होगा? ये जो है ब्लड जो है पूरे बॉडी में जाएगी और इस समय में जो है क्या होगा? ये जब सिकुड़ेगी तो ये दोनों एक साथ होती है, तो ये पूरे बॉडी में आ गया और यहाँ जो है लंग्स में चली गई ऑक्सीजनेशन के लिए। तो यानी कि यही डबल सर्कुलेशन हो गया। एक बार ये सिकुड़ेगी तो पूरे में है, एक बार ये सिकुड़ेगी तो एक बार जो है पूरे बॉडी में गया, एक बार जो है लंग्स में चला गया सेम टाइम में। तो यानी कि इसीलिए जो है इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। तो डबल सर्कुलेशन हो रहा है हमारे हार्ट में। तो हार्ट जो है हमेशा जो है जब भी ये करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, तो ऊपर वाला दोनों एक साथ होगा और नीचे वाला जो है फिर एक साथ होगा। इस तरह से जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और इस तरह से पंप करती जाती है। ये ओरिजिनल डायग्राम में भी सेम ये है फंक्शन। ये दोनों एक साथ सिकुड़ेंगे, तो एक साथ सिकुड़ने के कारण जो है ये ब्लड जो है इस चैम्बर से जो है राइट एट्रियम ऑरिकल से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएंगी, या राइट एट्रियम ऑरिकल से जो है राइट वेंट्रिकल में आ जाएगी। और जब ये दोनों सिकुड़ेगी तो कहाँ चली जाएगी? ये जो है पूरे बॉडी में चली जाएगी ऑक्सीजनेशन के लिए, और ये पूरे बॉडी में चली जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, और ये जो है पूरे लंग्स में चली जाएगी ऑक्सीजनेशन के लिए इसके थ्रू से। तो इस तरह से जो है क्या होता है, हार्ट जो है डबल पंप काम करती है।
यानी कि एक ही समय में जो है वो जो है हार्ट में भी, ये लंग्स में भी चली जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए, और एक ही समय में जो है वो पूरे बॉडी में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देती है। इस तरह से डबल सर्कुलेशन का काम करती है, डबल पंप का काम करती है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम lungs reach to heart and heart pumps blood to whole body. In same time heart receives blood from whole body and pumps into lungs for oxygen. This is called double circulation. उसी को बता रहे हैं कि एक समय में जो है हार्ट से जो है पूरे ये लंग्स में गई ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर ये लंग से जो है पूरे बॉडी में आई, ये हार्ट में आई, फिर हार्ट से जो है पूरे बॉडी में गई और पूरे बॉडी से जो हार्ट में आई, यानी डबल सर्कुलेशन का काम करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन नेसेसरी इन ह्यूमन बींग्स टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज दिस मेक्स द सर्कुलेटरी इज मोर एफिशिएंट एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है नेसेसरी इन ह्यूमन बींग्स टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज दिस मेक्स द सर्कुलेटरी इज मोर एफिशिएंट एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। यानी ब्लड सर्कुलेशन जो आवश्यक है ह्यूमन बींग टू ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि यह जो है सर्कुलेटरी सिस्टम को मोर एफिशिएंट बनाती है, मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स हैव 4 चैम्बर हार्ट। द एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स लिजर्ड हैव 3 चैम्बर हार्ट, 2 atrium and 2 ventricles. Fish have 2 chambered heart and 1 auricle and 1 auricle or atrium or 1 ventricle. The flow of blood in fish is single circulation. Fish में जो single circulation होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे lymphatic system is another medium of circulation of blood in human body है। lymph flows in only one direction from body to the heart. Like, share and subscribe.